Hi friends, very good afternoon. This is TGG and welcome back to my channel. Last Saturday we have speak about how we are going to see another crisis, another economic crisis. My first tagline was that are we ahead of our economic crisis? Yes. Today my answer is yes. I don't know how much people of this country is going to believe this or not. This is my personal wish. I'm not going to hurt anybody's sentiment or economical or political sentiment about this. It is my total view and my opinion what I want to share with you guys. I'm not saying just do it. You can follow our disclaimer also. This is just for informations or this is for view sharing. What I want to share my view along with you all other friends who are in this country or who are out of this country. Okay, so now I'm coming back to the main topic. What we are going to do, we are going to cover it up. What is the current COVID scenario? What is the current vaccination status of this country, how we are ahead of economic crisis, and as well as what is the current global status of the political or economical conditions, as well as we are facing a much more problem in the Lebanon and Venezuela and other countries who are already worse scenario, where is the economic problem has been increased like you have ever thought about it. Okay, so these are the 3-4 topics we are going to cover up today. And if you go for my previous video, like are we going to ahead with the economic crisis, you can see what are the question I have raised to the for my friends and art on that also. So first come back to the COVID scenario. आपने देखा था लास्ट टाइम मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था अबाउट द कोविड डेथ फिगर्स एंड करंट कोविड इन्फेक्टेड फिगर्स. ओके, सो वहां पे मैंने बोला था 4.5 लाख पे भी 4,000 की डेथ फिगर्स आ रही थी और 3.5 लाख भी 4,000 की डेथ फिगर्स आ रही है. ये कुछ मेरे को जम नहीं रहा है, और जबकि 2.5 लाख पे भी 4,000 डेथ की फिगर्स आ रही थी. तो सडनली आफ्टर दिस वीडियो they have decreased the death figures also on Monday. The same week on the Monday they have already disclosed that death figures also have come down. When the COVID figure is 1.76, death figure is came down from 4.5 thousand to 2,200, which is the lowest till last 84 days. Okay, that's good. I totally agree that figure should be in a statistics or in a mathematical way. मैंने पहले भी कहा था मुझे शायद मैथ्स उतनी आती नहीं है, मुझे उतनी स्टैटिस्टिक्स आती नहीं है, लेकिन मैं एक सवाल सिर्फ इतना करना चाहता हूँ, 2 और 2 4 ही होते, 2 और 2 5 नहीं होते. इन लोग 2 और 2 5 दिखा चुके थे. एनीवेज, नंबर में जो सेकंड मेरा पॉइंट था वो मैंने बार बार बोला था हमारे रेस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर्स को, जे आप स्टिमुलस पैकेज के बारे में सोचिए और ये सोचने का टाइम नहीं, वो कुछ करिए. फिजिकल स्टिमुलस पैकेज इज रिक्वायर्ड. ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं. अगर कल आप मनी कंट्रोल पे एक न्यूज आया हुआ है, आप देख लोगे, आज भी एक न्यूज आया, उसमें भी हम चर्चा करेंगे. ठीक है, ये भी बाद में, ये भी काफी हॉट टॉपिक है, इसमें हम लोग आएंगे. लेकिन उससे पहले आज कोविड फिगर के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें. जो हमारी अभी तक कैलकुलेटेड या हमको दिखाए जा रहे हैं वो काफी डाउनग्रेडेड हुए. कोविड वेव घटा है. I don't know how these waves are coming, from where these waves are coming, how this virus is automatically get mutate. I don't know, because I am not a medical background student. But still मैं एक बात कहना चाहता हूँ, this is manipulated. This is manipulated. Last time भी मैंने कहा था जे a virus cannot means distinguish what is the age groups, how it is defining the age groups. First wave above 50, second wave above 35, third wave they are going to take the kids. And you must be known or known, I don't know, already there is a news that 10,000 child already infected in Maharashtra. You can go for the internet search and you can search over there, already 10,000. I don't know whether you are aware of this news or not. So anyways, now come back to the point. सो ये था आज कोविड की फिगर्स जो काफी घटे हैं, वेव्स घट रहे हैं. चलो सही है, मान रहे लोग, अच्छा है, देश की इकोनॉमी के लिए भी सही है.
और वैक्सीनेशन का काफी तादाद बढ़ा है. ऑल वैक्सीनेशंस आर गोइंग इन अ फास्ट प्रोसेस. We hope we are going to get the vaccine as soon as possible. There is no will be not a crisis will be at all. 8 कंपनी है टोटल, 8 ने अच्छी बढ़ाए हैं. अब देखते हैं हम लोग कितने जल्दी इम्यूनेटेड होते हैं. फर्स्ट डोज तो मैं आशा करता हूँ इस साल बाय अक्टूबर तक फर्स्ट डोज कंप्लीट हो जाना चाहिए. 130 बिलियन या 130 140 और 150 बिलियन वट एवर द फिगर इज, उतना होना चाहिए. 8 कंपनी है, बहुत सारे इंजेक्शन खरीद रहे हैं, वैक्सीनेशन खरीद रहे हैं. चलो सही है, मार्केटिंग भी अच्छा है. अब आता हूं मैं इसके बाद क्या, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे ये बात किया था. आप इफ यू गो टू माय प्रीवियस सैटरडेज वीडियो and you can understand what I have already spoke over there and what I have not. Okay, so I have asked our finance minister, this is not a time to sit back yourself, go for it. People's require a stimulus because people already lost jobs in last year also, this year also. They have EMIs, they have home loans, they have a lot of things. If you want to run the system in a smooth way, you need to go for this. और स्टिमुलस का मतलब ये नहीं है जैसे बैंकों को पैसा दे दिए और उसी में चलते रहे. कल आया खबर जो आप लोग स्टिमुलस, शायद मेरी तो उतनी कोई अहमियत नहीं है मार्केट में, मुझे पता है, लेकिन मिस्टर राजीव जो कल मनी कंट्रोल में देखिए आपको स्क्रीन पे आ रहे होंगे, व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स में आ रहे हैं. मनी कंट्रोल ने ये कल न्यूज फ्लैश किया था, मिस्टर राजीव जो उन्होंने काफी अच्छी तरह से बोला जी अब इंडिया को स्टिमुलस की जरूरत है. और दैट डजंट मीन स्टिमुलस मतलब ये नहीं है सिर्फ ट्रांसफर कर दो पैसे और हो जाए. और ट्रांसफर, यू आर ट्रांसफरिंग द मनी टू द बैंक्स, यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू द बैंक्स टू गो फॉर अ लोन बिजनेस. क्या चाहते क्या, उस जिंदगी भर गुलामी करें, लोन लेते रहे और गुलामी करते रहे. और वो बैंक किसको लोन देगा? हु हैव अ कैपेबिलिटी, हु हैज अ ओन ट्रेडेबिलिटी. लास्ट 2 साल जिसके पास जॉब नहीं, बैंक उसको लोन नहीं देती है. जिसकी बिजनेस नहीं चल रही है, जिसकी आईटीआर 2 साल से नील फाइल है, उसको नहीं देगी बैंक लोन. व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट, whom you are fooling? Maybe 100 करोड़ पीपल्स कैन फूल, बाकी 50 करोड़ अभी भी तब मैं समझता हूं जो आज भी शिक्षित है. करना क्या चाहते हो? कल भी आरबीआई पॉलिसीज में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे. आरबीआई पॉलिसी सुनने के बाद जो आरबीआई का मिस्टर शक्तिकांत दास का कहना था जो वी आर गोइंग टू इन्फ्यूज मनी or you are going to transfer money to the banks for a fresh business that to 1 lakh crore. That's a very good news. But बैंक को मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप दोगे किसको? बिना कोलैटरल के तो आप दोगे नहीं, बिना गारंटी के आप दोगे नहीं, बिना जॉब के आप दोगे नहीं. इनसिक्योर लोन कहीं मिलते हैं? कहीं नहीं मिलते हैं. So whom you are fooling just to save down your GDP growth? What you have predicted in the right पॉलिटिकल व्यूज दैट आपके जीडीपी ग्रोथ पिछले बार 10.5 की उम्मीद लगाई जा रही थी, आईएमएफ ने तो 12% की उम्मीद लगा चुकी थी, वो घटते अभी 9.5 तक आ गई है. आगे क्वार्टर में पहुंचेंगे तो सुनेंगे 8.5 7.5 तक भी आ सकती है. भाई कोई बड़ी बात नहीं है. जैसे जैसे ये तूफान खत्म होते जाएंगे, मैं अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, as long as this cyclone is happening, the COVID cyclone, when these are going to be end, then the people will come to know what they have actually made the losses, and that time real economic crisis you are going to face it out. Believe me or not, but that time you are going to face the real economic crisis. Inflation, जिस देश की inflation बढ़ रही है हर रोज, पॉवर्टी लाइन बढ़ रही है. आपको पता है इस देश में नियर अबाउट 30 करोड़ पीपल्स हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन. दैट इज अराउंड 25% ऑफ द पॉपुलेशन और 22% अराउंड, which has been increased from the last year poverty population's rate. Just go and check the data in the internet, you will get over there. Is almost double. The inflation almost double. 100 के तेल, एक सिंपल सा हिसाब दिखा रहा हूं मैं आपको. 100 rupees mustard oil if come to 245, what is the inflation rate of that mustard oil increases? I want to know just this. मैंने पिछले टाइम भी बात किया था. Not only in the consumption products, lot of products have been already increased. जाहिर सी बात है, अभी तो होटल्स खुले नहीं है, रेस्टोरेंट्स खुले नहीं है, उन लोग को आने तो they are also going to back soon, I hope so. उनकी क्या रेट्स होंगी, नॉर्मल जिंदगी क्या होगी? आधे इंसान की तो जॉब है नहीं. एंड व्हाई यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी जॉब डेटा करेक्टली? आप अगर
बोलते हो जी हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, तो जॉब्स कट क्यों हो रही है, पीपल भूखे क्यों मर रहे हैं? इज दिस कॉल्ड जो जीडीपी, इज दिस कॉल्ड आप ग्रोथ? बहुत सारे लोग कल भी सुन के खुश हो रहे थे, मैं देख रहा था। आई एम फ्रॉम द मार्केट, आई कैन से एनीथिंग, so but my personal opinion or my personal view is like that my country is not in a safe hand today. वैक्सीनेशन दे रहे हो, वेरी गुड, जॉब भी लगाओ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाओ। क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है? और एक ही फंड को आप लोग सर्किल कर रहे हो, एक ही फंड को अब सर्किल कर रहे हो। अब जब भी कुछ स्टिमुलस लाता है सब बैंकों के लिए लाता है या एग्रीकल्चर के लिए लाता है, ये कोई नॉर्मल आम इंसान को कुछ भी नहीं मिलता है। जनधन अकाउंट में सिर्फ 500 रुपीज आप लोग भेजे हो, 500 रुपये में कितना दिन चलेगा? 3 महीना 4 महीना कैसे चलेगा? काफी हंसने वाली डेटा है, चलो कोई बात नहीं है, बट हम लोग आस्ते आस्ते इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। Don't see to the stock market how it is performing because there's a hell lot of global liquidations. पैसे कहीं से भी आ रहे हैं लेकिन बहुत तगड़ा आ रहे हैं। और साथ में सेबी, तो अभी देखो सेबी का नया मार्जिन सिस्टम भी आ गया, तो उसमें भी समझ में आ रहे हैं, उसमें भी समझ में आ रहे हैं। हर चीज इन लोग दिखाते जा रहे हैं। आज सुबह और एक न्यूज आई है, बहुत हॉट न्यूज, आपके देखो वहां पे दिखा रहा है मनी कंट्रोल में, और एक न्यूज मैंने पढ़ रहा था आज। अमर्त्य सेन, मिस्टर अमर्त्य सेन आप जानते हो इकोनॉमिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आज उनसे भी बुलवाए जा रहे हैं जी हमारी बहुत स्ट्रेंथ अच्छी है, जीडीपी ग्रोथ अच्छी जा रही है, वी आर इन रिकवरी ट्रैक। पूरे दुनिया रिकवरी ट्रैक के बारे में बात कर रही है भाई। अगर दुनिया रिकवरी की ट्रैक की बात कर रही है तो बाकी कंट्रीज को क्या प्रॉब्लम हो रही है? व्हाई दे आर फेसिंग हेल लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, not only political, it's economical also. China is in good shape, but still their growth has been also done. उनकी नीचे भी, उनकी ग्रोथ भी नीचे आई है, ऐसा कुछ बात नहीं है जो चाइना की ग्रोथ बढ़ रही है। सब सोच रहे थे चाइना की ग्रोथ बढ़ी, नहीं, उनकी भी ग्रोथ नीचे आई है, आप लोग डेटा चेक करो। लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा, हमारी देश की हालत उससे भी बदतर होने वाले है, बदतर होने वाली है। बिलीव मत करो, जब होगा तब ऑटोमेटिक बिलीव लग जाएगा। मैं आज नहीं बोल रहा हूँ डोंट बिलीव मी, आई एम जस्ट शेयरिंग माय ओपिनियन, जस्ट शेयरिंग माय व्यू एंड व्हाट इज द माय रिक्वेस्ट, आई एम जस्ट वांट टू डू दैट, करेक्ट ना? सो उसमें क्या है, जब होगा तब आपको पता चलेगा, तब बहुत लेट हो जाएगा, शायद बहुत लेट हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में काफी सारा ग्लोबल प्रॉब्लम्स दिखाए थे मैंने, जो आज के डेट में आप लास्ट 3 दिन की खबर, पुराने खबर पे चले जाओ, लेबनान की, जो बहुत ही भयंकर है। एक तरफ न्यूज दिखा रहे हैं लेबनान अटैक कर रहे हैं इसराइल पे। अगर लेबनान के पास इतना ही पैसा है इसराइल पे अटैक करने के लिए, तो उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी बढ़ क्यों रही है? खाना तो छोड़ो, 58% पॉपुलेशन हैव बिलो द पॉवर्टी लाइन जस्ट इन अ मंथ। दिखाए कुछ और जाते हैं, होते कुछ और है। और सही बोलूं तो अपने प्रैक्टिकल चीज को अभी यूज करने का टाइम आ गया है। यू शुड यूज योर प्रैक्टिकल ब्रेन्स और यू शुड यूज योर नॉर्मल ह्यूमन सेंस। ऐसे सिर्फ किरानों का दुकान या मुदी खाना में जाके आप पूछोगे तो उनकी बिजनेस चलने से पूरा जीडीपी नहीं रन करते हैं। बहुत सारे इंसान के बिजनेस की हालत बहुत ही खराब है। मैं टूरिज्म या होटल इंडस्ट्री या बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्या बहुत अच्छी हो रही है। अगर मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी होती तो ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस नहीं बढ़ते, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ते। जो हमारे प्रोजेक्ट थे 2019 पे, ठीक है, वो क्या पूरा डेवलप हो गया 2 साल में। 2 साल हम लोग पीछे रन कर चुके हैं। मतलब आप लोग ये कहना चाहते हो जब जब कोविड वेव आएंगे और हमारी जीडीपी ऐसे गिरते जाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, देखो नीचे आ रहा है। आईएमएफ ने कुछ दिन पहले क्या रिसर्च किया था, क्या बोला था, 12% फर्स्ट क्वार्टर की ग्रोथ मान रहे हैं, जो आके खड़ा हो गया 9.5 10
इतना भी बोले थे 10.5 की जगह 9.5, ठीक है चलो मान लिया 9.5, नेक्स्ट क्वार्टर में शायद इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, थोड़ा उन लोग एडजस्ट करेंगे। लेकिन ये एडजस्ट करते करते जो लास्ट बोल रहे हैं एनुअलाइज ग्रोथ, उसमें काफी अंतर आएगा। दैट डे यू आर गोइंग टू सी एक्चुअल फिगर्स ऑफ द इकोनॉमी, एक्चुअल फिगर ऑफ द इकोनॉमी। नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, और तब तक बहुत देर भी हो चुकी होगी। If your country's food prices, consumption prices are getting higher, then a simple reason is there: inflation rate is going higher. लोग बता रहे हैं बैंक्स का रिजल्ट काफी अच्छा, मैं लास्ट क्वार्टर भी देखा, बहुत अच्छा लगा मेरे लिए तो, बहुत ही अच्छा, बिकॉज आई एम स्टॉक ट्रेडर इन द मार्केट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, आप लोगों के बिजनेस किए ही नहीं हो, पिछले साल लॉकडाउन पे आपने कोई बिजनेस किया नहीं था, आपने कोई डिसबर्समेंट की नहीं थी, आपके जो पुराने लोन्स के ईएमआईज आ रहे थे उसी को आपने ग्रोथ मान लिया, न्यू बिजनेस कैसे हो गया? और इस साल तो ये सेकेंड वेव में तो पार्शियल लॉकडाउन था, पूरा लॉकडाउन नहीं था, देन व्हाई आवर जीडीपी हैज बीन कॉन्ट्रैक्टेड? और जनवरी फरवरी मार्च का फिगर आया हुआ है, उसमें क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं? तो सोचो आगे जब अप्रैल मई जून का फिगर आएगा कितना कॉन्ट्रैक्टेड होगा, आई डोंट नो, इज हेल्प। आपके पास इलेक्शन करने के लिए खर्चे हैं, आपके पास प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए खर्चे हैं, लेकिन आम जनता को देखने के लिए आपके पास कोई फंडिंग्स नहीं है। सिर्फ बोलना काफी नहीं है, ये दे दूंगा वो दे दूंगा, और जागो इंसान, अब जाग जाओ पीपल, यू नीड टू वेक अप। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल व्यू आई एम गिविंग, or neither I'm provoking anybody. This is my view, my opinion I'm sharing with you guys. And this is a harsh reality. अब मानो या ना मानो, this is a harsh reality. Today we are standing at the edge of our economy. अगले हफ्ते भी कुछ और अनाउंसमेंट हो जाएगी, देख लेना। आज ये वीडियो देख लो, पिछले सैटरडे का वीडियो देखो, फिर उसके बाद रिसर्च करो जे संडे से क्या क्या इकोनॉमिक में डेवलपमेंट हुआ है और कोविड फिगर्स में डेवलपमेंट हुआ है। जैसे से बोला वैसे से डेवलप हुआ, आज बता रहा हूँ, अगले हफ्ते देख लेना, सेम डेवलपमेंट्स होंगे। कोई ज्योतिष वोतिष नहीं हो, दिस इज ओनली स्टडी सेंस एंड रिसर्च फ्रॉम द इंटरनेट। देखो ना, कुछ दिन से चल रहे हैं ना, ट्विटर फेसबुक और इनके साथ व्हाट्सएप में शायद कुछ पंगे चल रहे हैं, अच्छा से पढ़ो, खुद समझ में आ जाएगी। तानाशाही, गुलामी, क्या चाहते हैं इन लोग, व्हाट दे वांट। जिंदगी भर गाड़ी खरीदते रहो, क्योंकि पॉलिसीज ने ऐसे बनाए हैं, ऑटो सेगमेंट को काफी ग्रोथ मिलेगा। हर बार बात को घुमाते रहो, और फंड्स हमेशा बैंक में ट्रांसफर करते रहो। आप लोग जो भी फंड्स ट्रांसफर कर रहे हो, बैंक को ट्रांसफर कर रहे हो, आम जनता को कुछ नहीं कर रहे हो, भूखे मर रहे हैं, वोट के टाइम याद आते हैं, सही है। और जनता भी अजीब है, जानते हुए फिर भी झंडा उठाना छोड़ेंगे नहीं। अब तो जाग जाओ। एनीवेज फ्रेंड, this is a bit little of the part how we are going to enter this crisis. आस्ते आस्ते इसमें हम लोग और थोड़ा वीडियो करेंगे और थोड़ा बातचीत करेंगे, ठीक है। आज पूरा कर लिया तो आगे बचेगा नहीं, और आप लोग शायद ज्यादा ही डर जाओगे मेरे ओपिनियन से, अगर मान लो तो। नहीं मानो तो और अच्छा है। तो सैटरडे, आज सैटरडे है, इवनिंग टाइम चल रही है, तो और एंजॉय करो। हम लोग इसके बाद ना शाम को एक और वीडियो आ रहा है स्टॉक मार्केट को लेके, जिसमें हम लोग कौन सी इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट करनी चाहिए और कैसे कब करनी चाहिए। आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट द म्यूचुअल फंड, आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट द स्टॉक इन्वेस्टमेंट, हाउ टू यू नीड टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक एंड व्हिच फंड व्हेन यू नीड टू इन्वेस्ट। फॉर दैट यू नीड टू स्टे विद अस। वो आ जाइए वीडियो आपको 8:30-9 तक, तब तक ये वीडियो देख लो और खुद रिसर्च कर लो एक बार। मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट आप लोग ना ये जो मैंने पॉइंट में बात किए हैं,
ठीक है। और एक बार मेरा प्रीवियस सैटरडे वाला देख लो, वीडियो देख लो, उसमें ना अच्छे तरह से पता चल जाएगा कि व्हाट आई वांट टू से एंड व्हाट आई वांट टू नॉट, व्हाट इज माय ओपिनियन, व्हाट इज माय व्यू। वो देख के आपको ये वीडियो का पता चल जाएगा कि कहां से कंटिन्यूएशंस है। और भी आगे इस सीरीज पे और 3-4 वीडियो बनेंगे, ठीक है। शायद बनते बनते आपको असलियत दिख भी जाए। एनीवेज, और जो स्टॉक मार्केट की बात है वो हम लोग शाम की वीडियो में बात करेंगे, और ज़्यादा कुछ आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। सो आज सैटरडे है, एंजॉय करो फैमिली के साथ। सोचा थोड़ा आप लोग से बात कर लूँ, तो बात कर लिया, क्योंकि आज वो सीरीज का मैंने पहला वीडियो में बताया था, आगे वीडियो में ज़रूर हल निकलेंगे। नेक्स्ट विल बी हाउ वी कैन गेट आउट फ्रॉम दिस। इसकी भी पोजीशंस है इनके पास, लेकिन ये यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आएगी तब नहीं यूज़ करेंगे। एनीवेज, ये मेरा आज का कहना था। लेट्स सी इन द इवनिंग। बाय बाय टिल दैट टाइम। चलो।